नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम एक सोलर कंपनी का स्टॉक रिव्यू करेंगे। द नेम ऑफ दिस कंपनी इज MV Photovoltaic. It's a bit of a complicated name, so I'll just mention it in the caption as well, so that you can research more about this company. So the numbers, the fundamentals of this company look very very impressive. तो past data जो ये कंपनी दिखा रही है काफ़ी सही डेटा दिख रहा है और उसके स्टॉक प्राइस में भी वो अप्रिसिएशन आया है काफ़ी रिसेंटली. But looking at going beyond the fundamentals, I found certain contradictions in the numbers which the company has shown. So that is something which I'll discuss, but I'll just run through the fundamentals. So 23,000 crore market capitalization की mid cap company है. The P of this company is 21, so valuation point of view से 21 है. ROE ROC is above 40%, so this is very impressive. Operating profit margin is more than 30%, so it has expanded in the last 3 years, so this is great. Sales growth is 100%, profit growth is almost 200%, so these are great numbers as well. And the best metric over here is fixed asset base has increased 10x in the last 2 years. मतलब जो लीडिंग इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ आ चुकी है. 100% सेल्स ग्रोथ, 200% अगर प्रॉफिट ग्रोथ बोले तो ग्रोथ तो आ चुकी है, बट द फिक्स्ड एसेट बेस इंक्रीज 10x इन द लास्ट 2 years. तो उस तरह का फिक्स्ड एसेट, उस तरह का केपेक्स कर रही है ये कंपनी. तो ये कंपनी जैसे बाकी सारे जो सोलर कंपनीज है, इट स्टार्टेड एज एन EPC कंपनी. तो EPC आपका एक डाउनस्ट्रीम काम होता है. आपको ये सोलर पैनल्स लगा के वो पार्क्स खड़े करने पड़ते हैं. देन उसके बाद companies got into module manufacturing. So again, module manufacturing is assembly, but the assembly is done at these plants or manufacturing units. Modules किससे manufacture होते हैं? Cells से manufacture होते हैं. तो cell manufacturing is something which the companies are trying to get into, right? So multiple companies, not just one company, this company, but Websol भी है जो cell manufacturing करने की कोशिश कर रही है. Premier Energy is another company. Waaree is another company. All these companies are doing backward integration because the government wants them to move backward. तो cell manufacturing is this company is also doing. And फिर last में जो है ingots and wafer manufacturing, जो completely China के पास है. कुछ 1 gigawatt की कैपेसिटी हमारे पास कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास. So over a period of time, in the next couple of years, all these solar companies are moving backward. तो ये कंपनी भी EPC से शुरुआत की थी. It got into module. Now it's putting capacities for cells. It's also putting capacities for wafers and ingots, and a lot of capital is required. तो free cash flow negative company है, and it has all the right technologies. जैसे solar cells manufacture करने में आपको PERC और TOPCon नाम की एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी पड़ती है. These are the two prevalent technologies, and HJT एक टेक्नोलॉजी है which is coming from China. So this company, multiple companies like Waaree वगैरह जो है, they are trying to move to HJT technology. तो cells में HJT technologies, this is a new technology, मतलब बोलते हैं ना upgraded version है टेक्नोलॉजी का. So सारी चीज़ें जो ये कंपनी कर रही है वो सही लग रहा है मुझे. P जो 21 का है, क्या मुझे ये अंडरवैल्यूड कंपनी लग रही है? नहीं, अंडरवैल्यूड कंपनी नहीं है ये, बिकॉज इवन वारी हैज़ अ PE ऑफ अराउंड 20-22 इन दैट रेंज. वेबसॉल हैज़ अ PE ऑफ 14. प्रीमियर एनर्जीज मुझे ओवर वैल्यूड या फिर थोड़ा अच्छे से वैल्यूड दिख रही है विद 31 का PE. तो मार्केट ने पूरे सेक्टर को, इरिस्पेक्टिव कि आप डाउन स्ट्रीम में हो, मिड स्ट्रीम में हो, अप स्ट्रीम में हो, वैल्यूएशन ही 20-25 का दिया है. तो उस नज़र से या उस तरीके से मुझे ये एक फंडामेंटली अंडर वैल्यूड कंपनी नहीं लग रही है, बिकॉज द इंडस्ट्री इज एट अ 2022 का PE. तो दिस इज नॉट एन अंडर वैल्यूड कंपनी, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इफ यू लुक एट ROE ROC, 40% ऑफ ROE ROC ग्रेट है. मतलब अगर ROE स्टैंडअलोन तरीके से आप देखो 40% इज ग्रेट, बट यू ऑलवेज हैव टू कंपेयर द ROE ROC विद द सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ. क्योंकि अगर मतलब 40% से पैसा बन रहा है बिजनेस में, तो पैसा बिजनेस में लग कितने परसेंट से रहा है? तो 100% से पैसा लग रहा है. मतलब मेरी सैलरी लेट्स से 2 लाख है, बट मेरे जो खर्चे है वो करीबन 4 लाख है, मतलब डबल है मेरे खर्चे. तो ऊपर के जो 2 लाख मुझे क्या करने पड़ेंगे? आई टेक डेट और आई डाइल्यूट इक्विटी. तो इस कंपनी ने भी अपना IPO किया, सो इट्स डाइल्यूटिंग इक्विटी. तो EPS ग्रोथ जो है वो थोड़ा डी ग्रोथ दिखेगा. बट द केपेक्स दैट दिस कंपनी हैज डन और इज डूइंग, अगर उसके लिए ज़्यादा इक्विटी, बहुत ज़्यादा इक्विटी डाइल्यूट करेगी कंपनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन इट विल हिट द स्टॉक प्राइस. मतलब स्टॉक प्राइस के ऊपर एक ओवरहैंग रहेगा, प्रेशर रहेगा. सो यू हैव टू एंश्योर दैट दिस काइंड ऑफ अ कंपनी हैज़ अ पैड ग्रोथ
which is 200%, 250%, 350% काइंड ऑफ पैट ग्रोथ, क्योंकि इतना इक्विटी डाइल्यूट कर रही है तो ईपीएस को हिट नहीं होना चाहिए। तो सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा है। फ्री कैश फ्लो नेगेटिव ही रहते हैं ऐसे कंपनीज, क्योंकि इनको कैश की ज़रूरत होती है। इनका रिसीवेबल डेज मुझे अच्छा लगा, करीबन 50 का रिसीवेबल डेज है। मतलब कंपनी ऐसा कुछ कर रही है जिसकी वजह से वो लोग पैसा अपने कस्टमर्स से निकालने की क्षमता रखते हैं। तो इट वाज 30 लास्ट ईयर, इट हैज़ इंक्रीज टू 50। दिस इज़ वन थिंग विच वी नीड टू कीप अ चेक ऑन, क्योंकि अगर बिजनेस में पैसा नहीं आता है, मतलब अगर इन्वेंट्री धरी की धरी रह जाती है या फिर जो कस्टमर्स है वो पैसा सही वक्त में नहीं देते, तो फिर शॉर्ट टर्म डेट बढ़ सकता है, विच कुड अगेन ईट इनटू द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड अगर कंपनी इक्विटी डाइल्यूट और करती है देन द ईपीएस वुड टेक अ सीरियस हिट। तो अभी तो एक हाई ग्रोथ कंपनी है ये, राइट। इन्वेंट्री ऑफ टेक बड़ा ही, एक तरह से इन्वेंट्री थोड़ा बढ़ रही है इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, बट आई थिंक द लार्जर इलेक्ट्रिफिकेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी का थीम इतना स्ट्रॉन्ग है कि आई थिंक इन्वेंट्री ऑफ टेक स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब इन्वेंट्री कम होते जाएगी। तो I think it's already a growth company. Websol, Premier, Vari are certain competitors which you could look at. Stick to companies which are moving टू द टॉप एंड, मतलब जो सेल से इनगेट वेफर की तरफ मूव कर रहे हैं या फिर मॉड्यूल से सेल की तरफ मूव कर रहे हैं। डू नॉट काइंड ऑफ लुक एट कंपनीज विच आर जस्ट डूइंग ईपीसी वर्क। इनके ऑर्डर बुक्स काफ़ी बड़े दिख सकते हैं क्योंकि डिस्कॉम से इनको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलते हैं, बट इनका ग्रोथ बहुत लंपी रहता है। एंड ग्रोथ चाहिए तो केपेक्स करना पड़ेगा, वैल्यू चेन में ऊपर मूव इन करना पड़ेगा। सो दिस इज अ ब्रीफ अबाउट MV Photovoltaic. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. डू रीड अबाउट दिस कंपनी. दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन. टेक केयर. बाय बाय.